Hello students, this is Anjali Chaturvedi. I'll be starting off with the first chapter in your syllabus, that is periodic table, periodic properties and variation of properties. In this chapter you will learn about the periodic properties and their variations in groups and periods, then definition and trends of atomic size, ionization potential, metallic character, electron affinity, non-metallic character, electronegativity, etc. Starting with the chapter, in class ninth, if you remember, we have already studied about the contribution of Dubonniers, Newland, and Mendeleev's to the classification of elements. So the first question which arises or comes in the mind, that what was the need of the classification? As I've already told you in the previous class, that classifying the then found element was very necessary because first, in the starting of somewhere around 18th century, very few elements were discovered, but after a lapse of say 50 years, many new elements were discovered. So now the scientist or the chemist wanted to arrange them into a group or classify them into uh, keep them in so that the study of these elements will be easier. Now how they wanted to classify it based on their properties. Okay, so revising a little bit that what we have studied in class ninth. First we will see what was Dubonniers classification all about. You know, he gave the elements in three, he kept the elements in three triads. And these three triads were with similar properties. And the atomic weight of the middle element was the arithmetic mean of the other two. The different triads which he has given were chlorine, bromine, iodine, then calcium, strontium, barium, and then lithium, sodium, and potassium. So these triads were having similar, these three elements were having similar properties, but later on, this theory was discarded, and the reason was that Dubonnier failed to arrange all the then known elements in its triad form. Okay, he was not able to arrange all the elements which were present that time into these triads. And sometimes what happened, the same family, this law or this rule of arithmetic mean did not work. Okay, so we'll see the example of it. Dubonnier said that okay, chlorine, bromine, and iodine. So these are the three elements in a triad. For chlorine, the atomic weight was 35.5. For bromine, it was 80. And for iodine, it was 127. Now, this 80 was actually the mean of when we added this and divided it by 2, it was somewhere around 80. So this worked. But the same family, if we took fluorine also here, so these three were not able to form the triad. The arithmetic mean was not equal. Let's see the example. Fluorine has atomic weight as 19, chlorine has 35.5, and bromine had atomic mass as 80. So when we added these two and um, divided it by 2, the answer was 49.5, which is very different from this 35.5. So in the same family, this was not working. Okay, his triad were not working. So these were the major two problems which were being faced by Dubonnier. Now, but this scheme of classification of Dubonnier was successful as it gave some insight and some principles on which the other scientists could have worked. Now, coming up to the second one is Newland. Now, Newland, as you all know, his name was
So as you all know that John Newland was a lover of music, and the law which he gave was known as Newland's law of octaves, because he arranged the elements in ascending order of their atomic mass. And what did he found? He found that every eighth element had properties similar to the property of the first element. Just as the first note, suppose if we say, the for music lovers it is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. So the number which comes on sa, that is suppose any element which comes on sa. So after that, if we counting this sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, then again sa. So the other element which will come down will have the similar properties. You can refer for the table in of class ninth book. Okay, the chapter is periodic table, chapter 5. You can refer. You'll get the table there. So I'm just simply revising it because I've already done that. So he was able to find out that many of the elements were in the same group and have similar properties. So repetition of the properties were there after every eighth element. But the problem was that till that time noble gases were not discovered. So after the discovery of noble gases, this law of octave didn't work. So the reason for discarding this law of octave was that it did not work with heavier elements. Okay, only till first 20 elements it worked till calcium. Later on, when more elements were discovered, they were not they didn't find place in Newland's octave. Okay, so this way this theory was also discarded. Now then came Dmitri Mendeleev. So Mendeleev actually has arranged the then known 63 elements in the increasing order of their atomic mass, and he was somehow he was successful in doing that, and he called it as periodicity of properties of element. And then he propounded the law that is called as Mendeleev's periodic law. And what is that Mendeleev's periodic law? That physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. So now this all the work was going on based on atomic mass, because they were thinking that this atomic mass is a unique property. And who was the scientist who first gave this characteristic? It was William Prout, who discovered that the atomic mass of an element never differs, and that it could therefore form a truly scientific basis for a satisfactory scheme of classification. So all of them were working on the same scheme, that is atomic mass. Again, for Mendeleev also, there were the features were there, were essential features we've already studied. Merits were there. If you remember, last year we have done grouping of elements. He could discover the gap of undiscovered elements, and then prediction of properties of undiscovered elements. So all this were his merits. But the problem was, what were the defects? The defects were that when he was arranging the atomic masses in their increasing order, sometimes he has given an anomalous pair where the bigger atomic mass was preceding the lower atomic mass, and he could not explain this, but the position of isotopes he could not explain, and that is why this Mendeleev's table was also discarded. Now then came Henry Moseley. Okay, Henry Moseley was working with some X-ray thing, and then he could find out that the physical and chemical properties of element were the periodic function of their atomic number. So he said that atomic number is the fundamental property of an element, and it can be considered as the main essence for arranging the elements. So later on, who after Henry Moseley, Neil Bohr also worked on this modern periodic table, and then he gave the extended form of the table which we are using, that is long form of modern periodic table. So here you can see this is the long form of periodic table of elements. Um,
The elements are arranged in periods and groups. Groups are the vertical columns and periods are the horizontal rows. You can see these are your groups, these are your periods. Okay, top to bottom when you move, so you have those groups, and then when you move from left to right, it is your. So groups are named. This is the older form of writing, that is 1A, 2A, then 3A, 4A, like this. Now they are the modern IUPAC suggests that these are the group numbers which we consider right now. But in your examination, if both the forms, both the notations will be accepted. Okay, both the notations you can write. Either you can write in numerical form 1, 2, 3, 4, or in these Roman numerals also. So this is your long form of periodic table. And if you want to define the periodic table, it will be, so a tabular arrangement of elements in groups, vertical columns, and periods, that is horizontal rows, highlighting or showing the regular trend in properties of element is called a periodic table. Okay, so now we'll study about the salient features of the modern periodic table. You can just open periodic table with you, and we'll go through, we'll study about this. So the modern periodic table has how many vertical columns, that is groups? 18. Okay, and each vertical column accommodates element with the same number of electrons without motion. This we'll study further, I'll explain you this. First we'll see the groups. Okay, first we'll see the group. Okay, so as you can see here, this is your modern periodic table. Now we'll see the salient features of the modern periodic table. So the modern periodic table has 18 vertical columns. Those are groups. You can see here, these are 18 vertical columns. These are known as group. Then we have, so which is group 1? This is group 1 on top to bottom. This is group 2. Then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, which we are not talking about. It's not in our syllabus. Coming up to 13, then 14, 15, 16, 17, and 18 or 0 group. So these are groups. Then we have period. This is first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, and seventh period. So 18 groups, and we have 7 periods. So now we will talk about the groups. Okay, we'll talk about groups, the characteristics of. So group 1, which is group 1? This is group 1. Okay, this is group 1. So group 1 has elements hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So these are group 1 members. So group 1 is known as alkali metal, except hydrogen. Hydrogen is not included in this group. So these lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium, they are known as alkali metals because they form strong alkalis with water. I hope you all know what are alkalis. They are water soluble bases. So they can, all the elements here will react with water to form an alkali. For example, NaOH, KOH, etc. Second group, which this is the second group. The members are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Okay, these are the members. These members are known as alkaline earth metal. Okay, they are known as alkaline earth metal. They are known as alkaline earth metal because they also form water, form alkalis, but they form weaker alkalis as compared to group 1 elements. So naming you should know that group 1 alkali metal, group 2 alkaline earth metal. Then comes group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 till 12. Okay, 12 till 12, they are known as transition elements, which are not in your syllabus. Only some few properties are there. All the elements of these group are metal. ये सारे metals हैं, ठीक है? These all are metals. ये सारे metals. ये वाला जो part, including this. So they all are metals. They have their 2 outermost shell incomplete. How come 2 outermost shells
can be incomplete. This you will study further in class 11th. So two outermost shell, valence shell, and the other shell which is just next to it, and are incomplete. So we are not studying this. We are the syllabus. They are not in the syllabus. We are only concerned with group 1, 2, and then 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Okay. Now coming up to the group 13, ये वाला जो ग्रुप है, इसका पहला मेंबर देखेंगे. पहला मेंबर है बोरॉन. इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं क्योंकि बोरॉन इसका फर्स्ट मेंबर है. फिर आ जाता है हमारा कार्बन. तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली. ठीक है, ये इनके फैमिलीज के नाम है. लेकिन और भी कुछ कहते हैं इनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फैमिली. You can see oxygen family is also known as chalcogens. And why they are known as chalcogens? Because the name itself comes from chalcos, which means ore forming. Ore forming means these are actually found, mostly all the elements are found in ores. You know what is ore? Ore from which minerals are extracted. So they are in the form of ore. That is mostly all the members. That is why they are known as chalcogens. Okay. Coming up to the next one, that is 17th, is known as halogens. Again, halogens meaning salt formers. They form salt. With whom they form salt? With group 1 and group 2 elements. Okay, group 1 and group 2 elements, they form salts. That is why they are known as halogens, which means salt former. Then last one is, either you can call it 18th group or you can call it zero group. Why zero? Because you know they are inactive members, they don't react, and that is why they are called as zero group. So the 18th group will be your inert gases, and they do not react. Their outermost shell is complete. They have a stable electronic configuration and they hardly react. So this was actually what we knew about the group. Now coming up to the periods. There are 7 horizontal rows in the modern periodic table which are known as periods. As I already told you, these are the periods. Some 7 periods we have. Each period begins with an element having 1 electron. पहले का 1 electron in its valence shell and ends with a complete filled, यहाँ पे completely filled either duplet or octet. ये भी मैं अभी आपको explain करूँगी, and I will teach you how to draw the periodic table. Okay, so this way these are some 7 periods. Okay, now I've already taught you to make this periodic table, but again I'm reminding you, we're revising that how to make a periodic table. What you will do, first you will draw these rows and columns, and then you will write in the first column, you will write here 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And these were the older notations which we have taught you. You have to put A for it, for every this thing. It's 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A. New notations you can use, they are written down. See, 1, 2, then 13, 14, 15, 16, 17, and 18. And then here you have to write the periods, that is 1, 2, 3, and 4. These are the periods. Now we will fill the elements in it. So first period only 2 elements, that is hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. So this way you can fill the periodic table and learn it. First 20 elements you have to learn according to your syllabus. And now we will see the various periodic properties. Okay,
When I say, now you have to remember this, when I say that we are moving top to bottom, that means I'm talking about a group. In a group, we move from top to bottom. In a period, we move from left to right. This you have to learn. Okay, whenever I say in a period from left to right, so you have to remember this. Okay, when I say third period, the members are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Now I will tell you one more this thing which we have in our syllabus, that is typical elements, and the question comes that what are typical elements. So other than argon, all the elements of this period, that is third period, that is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine, all these elements summarizes the property of their respective group. बॉस हैं ये, ओके, ये बॉस है, ये डिसाइड करते हैं ये कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी इनके ग्रुप की. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला ग्रुप क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला जो ग्रुप है, उसको जो सोडियम है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, समराइज करता है, होल्ड करता है, कमांड करता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स. क्वेश्चन कम्स व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स, सो यू विल से द थर्ड पीरियड एलिमेंट, दैट इज सोडियम, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine. They summarize the property of their respective group. So that is why they are known as typical elements. Okay. Now comes what are the information which we are getting. What are the various informations which we get when we say that group and period? What does they inform? Again the same thing. When we move in a group from top to bottom, you can see that one shell is added. Okay, here this is period number 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So first period will have only one शेल, एक ही शेल होगा उसमें. पहले पीरियड में एक ही शेल होगा, दूसरे में 2 शेल, तीसरे में 3 शेल, और फोर्थ में 4 शेल होंगे. सो जो पीरियड है वो क्या शो करता है, वो शो करता है नंबर ऑफ शेल्स. तो विद पीरियड यू कैन टेल व्हाट आर द नंबर ऑफ शेल्स. तो थर्ड पीरियड के ये जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ये बॉस हैं, ये डिसाइड करते हैं उस ग्रुप की प्रॉपर्टी को. तो अगर आपको कोई ये बोले कि फर्स्ट ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो जो भी प्रॉपर्टी सोडियम की देखेंगे तो वो फर्स्ट ग्रुप की एक बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि दैट समराइजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ग्रुप. तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर द टिपिकल एलिमेंट्स. ओके, अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की. आपने देखा पीरियोडिक टेबल में वो सबसे नीचे हैं. ओके, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रेयर अर्थ, दैट इज ग्रुप 3 of the 6th period, and actinides are radioactive. Lanthanides are rare earth and actinides are radioactive. Now group 3rd, lanthanides belong to group 3 of group 3 of the 6th period, and actinides belong to group 3 of the 7th period. They have similar properties because they belong to the same group, that is group 3. Why they are shown at the bottom of the periodic table? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बार आपको मार्क कराती हूँ जो भी क्वेश्चन है. लास्ट ईयर भी मैंने आप लोग को मार्क कराया था आपकी बुक में कि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. तो बोर्ड क्लासेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू असर्टेन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द बोर्ड. तो ये वाला इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग का कि क्यों इनको आपकी मेन बॉडी में नहीं रखा गया है ना, मेन उसमें इनको निकाल क्यों दिया गया है. तो दिस इज द आंसर, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे बुक में टिक करके, और रीजनिंग का क्वेश्चन लिखेंगे रीजनिंग का ऐसे करके. और क्या है रीजनिंग का, ये कि
अगर उनको हम मेन बॉडी में शो कर देंगे तो दिस विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप, उसका शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। फिर टिपिकल एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे बुक में। फिर पीरियड मैंने बता दिया आपको कि पीरियड क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ शेल्स, जिस पीरियड का है एलिमेंट उतने ही उसमें शेल होंगे। अगर वो फोर्थ पीरियड का है तो उसमें 4 शेल्स होंगे, थर्ड पीरियड का है तो 3 शेल्स होंगे, सेकेंड पीरियड का है तो 2 शेल्स होंगे। तो इस तरीके से आप उसको पीरियड को डिटरमाइन करने यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ शेल पता लगाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से ग्रुप का जो नंबर है वो असर्टन करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे हाउ दिस विल हैपन। नाउ दीज आर सम डेफिनेशंस व्हिच यू हैव टू लर्न। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? तो क्या है पीरियोडिसिटी? The properties that reappear at regular intervals और in which there is a gradual variation। अगर इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रहा है तो वो एक ग्रेजुअल होगा, कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल एक एक करके बढ़ता है, +1, तो यू हैव दैट वेरिएशन विच इज फिक्स्ड। तो इस तरीके से एक रेगुलर इंटरवल पे वो वेरिएशन दिखाई देता है। इस तरह इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इस टेबल के साथ बोलेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। नाउ the question comes, what is the cause of periodicity? ये भी क्वेश्चन आप लिख लेंगे इसमें, what is the cause of periodicity? So the cause of periodicity is the recurrence of similar electronic configuration। ये कीवर्ड है आपके, similar electronic configuration। Similar electronic configuration क्यों होगा? Because they have the same number of electron in the outermost shell। ग्रुप 1 में outermost shell में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3A में 3 इलेक्ट्रॉन, 4A में 4 इलेक्ट्रॉन, 5A में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5A में 5 इलेक्ट्रॉन, देन 6A में 6 इलेक्ट्रॉन, 7A में 7 इलेक्ट्रॉन एंड 8 दैट इज 0 ग्रुप में जो आउटर शेल है वो फिक्स्ड है और उसमें 8 या तो ड्यूप्लेट हीलियम वाला या बाकी इसमें ऑक्टेट स्टेट होता है। So this way ये है cause of periodicity. Okay, now coming up to the orbits, I've already told you electrons revolve around the nucleus in certain definite circular paths called orbit or shells. Number of shells down in a group, that is from top to bottom. The number of shell increases successively. Successively बात करेंगे तो 1 by 1, ठीक है, एक एक शेल ऐड होता जाएगा। ग्रुप 1 में, पीरियड 1 में 1 शेल, पीरियड 2 में 2 शेल, पीरियड 3 में 3 शेल, पीरियड 4 में 4 शेल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम पहला ग्रुप ले लेंगे तो हमारा पहला ग्रुप है ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल जो लिया है वो आपका लिया है हैलोजेंस का, दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पिरिन। लेकिन हम पहले ग्रुप का ले लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गए आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। पहला पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का है हाइड्रोजन, सेकंड का ये और थर्ड का ये और फोर्थ का ये। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसमें जो शेल है वो है 1, इसमें जो शेल है वो 2, फिर इसमें हो जाएंगे हमारे 3 और इसमें हो जाएंगे हमारे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे एक एक शेल उसमें हमारा इंक्रीज होता जाएगा, सक्सेसिव, दैट मीन्स 1 + 1 होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रुप में। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एक एक करके सक्सेसिव शेल ऐड हो जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। बट व्हाट हैपेंस अक्रॉस अ पीरियड? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीरियड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेल। तो पहला पीरियड, अगर पहला पीरियड है तो उसका जो शेल होगा वो होगा 1, सेकेंड पीरियड का शेल 2, थर्ड का 3 शेल्स होंगे, फोर्थ का 4 होगा। इसका मतलब जो शेल है, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पीरियड है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ शेल, एंड नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम इन अ पीरियड
तो अगर हम एक पीरियड ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, सपोज वही वाला सोडियम वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला। तो हमारा जो थर्ड पीरियड है वो है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थर्ड पीरियड के मेंबर्स हो गए। अब आप इसमें देखेंगे सोडियम में भी शेल जो है वो कितने होंगे, थर्ड पीरियड है तो उसका जो शेल होगा वो होगा 3, और यही मैग्नीशियम में, यही एल्यूमिनियम में, और यही सिलिकॉन में। दैट मीन्स द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अब आ जाते हैं वैलेंसी के ऊपर। व्हाट इज वैलेंसी? यू नो द डेफिनेशन, इट डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द atom of an element, and it is equal to the number of electron an atom can donate or accept or share। तो जब हम कहते हैं डोनेट, तो जब डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा, कैटायन। एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। On moving down in a given group, the number of electron in the outermost shell remains the same। ये सब याद करना है आपको, remains the same। मतलब जब हम ग्रुप में नीचे चलेंगे तो जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सेम रहेंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप में जो बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, दैट इज 1। तो वैलेंसी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जितने बाहर के शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि वो उस 1 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमारा पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम का। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, दे देगा। ओके, तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी बन जाएगी 1, और उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कैटायन बना देगा। इसी तरीके से क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन में आपका जो बाहर आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो रहा है तो उसकी भी वैलेंसी 1 ही होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड। लेकिन इसका जो आयन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एनायन बनेगा वो। दैट मीन्स क्लोरीन 1 नेगेटिव, वैलेंसी रिमेन्स द सेम। सो दिस वे, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन करा रही हूँ मैं आपको। तो ये हो गया आपका वैलेंसी। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटरमोस्ट शेल। वैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो 1, 2, 3 एंड 4 है, अगर इन इन चारों में से कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यही उसकी वैलेंसी होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तो वैलेंसी 1 होगी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन 4 के बाद अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 5, दैट इज 3। ठीक है, अगर 6 है तो 8 माइनस 6, दैट इज 2। और अगर 7 है तो 8 माइनस 7, दैट इज 1। और अगर 8 है तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से वैलेंसी डिटरमाइन होती है। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी के साथ हम कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। चार्ज के लिए हम बोलते हैं प्लस और माइनस। वैलेंसी इज जस्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 और सोडियम की भी वैलेंसी 1। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो टाइम टू टाइम अपने अंदर एक चेंज दिखाती हैं, जो कि पीरियोडिक चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि पीरियोडिसिटी, तो ग्रेजुअल वेरिएशन होता है। वो हम देखेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, विच इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर interval. Now first is atomic size. What do you understand by atomic size? It is the distance between the center
It is the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell. यानी कि सेंटर से लेके, देखिए सेंटर ये रहा, इस सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अब ये दो मॉलिक्यूल्स, ये दो एटम्स कंबाइन करके इन्होंने ये एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसके जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा एटॉमिक रेडियस. यूनिट क्या होती है इनकी? एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर. ये मीटर के साथ देखिए, एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है और पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर है. तो यू कैन इमेजिन कितना छोटा साइज ये होता है इसका. एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ शेल्स पे. और किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पे. नंबर ऑफ शेल मतलब आपको पता ही है नंबर ऑफ शेल क्या होता है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज होगा. एक चीज है उसके साथ सिर्फ एक शेल है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये एक के साथ बहुत सारे हैं, तो यू कैन इमेजिन ये डिस्टेंस. तो साइज किसका बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक साइज जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पे. और नंबर ऑफ शेल के साथ कैसे चलता है? शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो साइज भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज करेंगे तो साइज भी डिक्रीज करेगा. समझ में आ गया ये? अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं सेकंड जो चीज है इस पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज. अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है तो इसको समझेंगे पहले. न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है सबको पता है ना? भूले तो नहीं है ना? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ द एटम. और सेंटर ऑफ द एटम में कौन बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं. और कौन बैठा है? न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं. तो अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात करूं तो उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल. तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस का? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे. मोर द प्रोटॉन्स मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज. मोर, अब ये तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज हमने समझ लिया. लेकिन अब ये न्यूक्लियर चार्ज हमारे एटम के साइज को कैसे चेंज करेगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये आगे आएगा पॉइंट, कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ओके, मोर द nuclear charge less is the size. ठीक है, याद रखेंगे, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज छोटा साइज. क्यों? क्योंकि जो अंदर प्रोटॉन बैठे हुए हैं वो बाहर वाले सबसे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, और इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि वो ओवरकम कर देगा रिपल्सिव फोर्स को. रिपल्सिव फोर्स क्या होता है ये बताती हूँ मैं. जैसे इलेक्ट्रॉन, ये आपका आउटर मोस्ट शेल मान लीजिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके. अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी चूंकि सेम चार्ज के हैं तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक रिपल्सिव चार्ज होगा. ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम कर लेता है और इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? साइज छोटा हो जाता है. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, मोर द न्यूक्लियर चार्ज लेस इज द साइज. लेस द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द size. Okay, got it? So this is what atomic size depends upon. Okay, now moving on to the next thing, which is, ये मैंने आपको बता दिया, it is a positive charge present in the nucleus. ये आपको explain कर दिया मैंने. ये वाला भी point आपको explain कर दिया मैंने. Okay, ये भी.
अब हम ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड्स कैसे चलता है, एटॉमिक साइज कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना, वो हम एटॉमिक साइज का देखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो शेल इंक्रीज कर रहे हैं, शेल इंक्रीजेस तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम what will happen, the size will increase। याद रखेंगे ये पॉइंट, ये पूरा पॉइंट आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि what happens when, है ना, ऐसे करके वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। when we move down in a group what happens to the atomic size, what happens to the atomic radius, radius के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। okay, so here they have given you the example in your book that hydrogen का atomic number 1 और साइज देखेंगे उसका कितना छोटा है, क्योंकि उसमें एक ही शेल है। यहाँ पे 2 शेल हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ सॉरी, इस तरह से हम नीचे चलते चले जाएंगे और जो शेल है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। और जब शेल इंक्रीज कर रहा है तो हमारा साइज भी इंक्रीज करेगा। साइज देखेंगे हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारे साइजेस हैं जो कि इंक्रीज हो रहे हैं व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। ओके, व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप the size increases. Now what happens when we move across a period, when we move across a period, तो क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको न्यूक्लियर चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लगेगा आपका। इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजनिंग का क्वेश्चन बना लेंगे, रीजनिंग लिख लेंगे उस पर, QR, ओके, QR बुक में ही लिखते चले जाएंगे। QR बुक नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, इसको सेव करेंगे वीडियो को, बाद में जब बुक मिल जाएगी तो उसमें हम मार्क करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम व्हेन यू मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप उसमें बता देंगे कि बिकॉज ऑफ, कीवर्ड आएगा आपका न्यूक्लियर चार्ज। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब आ गया हमारा एक्सेप्शन। इसमें क्या है, केमिस्ट्री में मैंने बताया है आपको पहले भी जब भी पढ़ाया है कि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सेप्शन याद रखना है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा, तो QR लिख लेंगे इसमें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। व्हाट, व्हाई द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस इज बिगर देन हैलोजन्स। क्वेश्चन आ गया, साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस इज बिगर देन हैलोजन्स। ठीक है, अब मैंने क्या आपको बताया, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है, देखिए साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। लेकिन एकदम से क्या होगा, यहाँ पे आके जहाँ पे आपका ये इनर्ट गैस आएगी वहां पे आते ही क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा क्यों होता है, ये रीजनिंग उन्होंने पूछी है आपसे, पूछेंगे आपसे, तो आपको इसमें आंसर क्या याद करना है। This is because the outermost shell of inert gases is complete. Complete है, पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। They have the maximum number of electron, और किसी में नहीं है outermost shell में, किसी में 7 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। सिर्फ इनर्ट गैसेस ऐसी हैं जिनमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं outermost shell में सबसे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, क्योंकि सेम चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपस में एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो मैक्सिमम होता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को हरा देता है, छोटा कर देता है। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन। और ये रिपल्जन मैक्सिमम हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज हार जाता है और एटम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू हैलोजन्स। ओके, सो अब आपका इसमें कीवर्ड क्या आएंगे, आपका ये आएगा okay, because they have maximum number of electron in the outermost shell and thus electronic repulsion overcome the effect of nuclear pull. Okay, if जो न्यूक्लियर पुल है हमारा उसको वो क्या करता है, ओवरकम कर देता है। ये रहा आपका आंसर, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन, या उसको ओवरकम कर देता है। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटायन सबको पता है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जो आयन पॉजिटिवली चार्ज है वो हमेशा जब बनता है तो अपने पेरेंट एटम से छोटा बनता है, याद रखेंगे। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज
फॉर्म्ड। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और लूज करने की वजह से क्या होता है, उसका जो नंबर ऑफ शेल है वो डिक्रीज कर जाता है। Okay, cation is formed by the loss of electron, hence protons are more than the electrons in the cation, और इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। देखेंगे सोडियम, सोडियम में अभी आपने बताया था आपको, सोडियम में क्या है, सोडियम में पहले शेल में 2, फिर 8, लास्ट में 1। अब क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने बैठे हुए हैं, प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं 11, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी कि प्रोटॉन्स आर मोर इन अ कैटायन। यहाँ पे लिख लेंगे प्रोटॉन्स आर मोर इन कैटायन। तो क्या होगा, प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूक्लियर पुल या चार्ज विल बी मोर, और जिसकी वजह से साइज कैसा हो जाएगा, साइज स्मॉल। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी आप यही लिखेंगे, प्रोटॉन्स आर मोर इन कैटायन देन द इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूक्लियर पुल विल बी मोर एंड द साइज बिकम्स स्मॉलर। ओके, अब आ जाते हैं कि एनायन जो होता है वो लार्जर क्यों होता है पेरेंट एटम से। अगेन सेम थिंग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेचुरली क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, और उसकी वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस है वो लेस हो जाएगा, सो लेस इनवर्ट पुल इज एक्सपीरियंस्ड। जो इनवर्ट पुल है आपका वो लेस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन दी पेरेंट एटम। ये भी एक रीजनिंग का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो रीजनिंग, इसको भी मार्क कर लेंगे QR करके। वाई एनायन इज लार्जर देन दी पेरेंट एटम, उसमें भी आप बताएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला ही कॉन्सेप्ट देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे, तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर पुल विल बी लेस, सो द साइज एक्सपैंड्स, hence the size expands। so ये क्लोरीन आयन, ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए किसी किसी ईयर में आया है, why the chlorine ion is bigger than the chlorine atom। तो एटम और आयन का डिफरेंस समझ जाइएगा। आयन का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, आयन अगर बोल दिया तो, और एटम मतलब न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए उसको आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक आयंस मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयंस सेम हो जाए। तो द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। साइज किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो गए सबके, तो जिस पे ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो साइज छोटा होता चला जाएगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम जब बनता है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 12 होते हैं। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि उसमें 12 उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 2, और जिसकी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर देता है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 12 रह जाते हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं। इस तरह के सेम में ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, सेम इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज़्यादा है, मैग्नीशियम में ज़्यादा है। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा, फिर सोडियम का, फिर फ्लोरीन का, और फिर ऑक्साइड का जो आयन बना है हमारा, ये हमारे साइज दिया हुआ है। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस इज द साइज।